Hello students, it's me Ekta Singh. Today we will study about your first chapter of civics and this is understanding diversity. Firstly, before starting the chapter, you have to know about something civics. It's your subject. What is civics? Do you know anything about it? Listen, civics is the study of citizenships. ये किसकी स्टडी होती है? हमारे सिटीजनशिप्स की होती है. Civics can teach you about the right granted to citizen. ये हमें बता सकती है कि हमारे सिटीज़न होने के नाते हमें कौन कौन से राइट्स मिलते हैं. And it the right granted to citizen as well as their responsibilities. और जो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है कि हमारे समाज के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है एज अ सिटीजनशिप्स ऑफ आवर कंट्री. Understood? Now start the chapter. Your chapter is all about diversity. Diversity means जो हमें differences देखने को मिलते हैं, हमें विभिन्नताएं मिलती हैं. कहाँ कहाँ? In all kinds of backgrounds, all kinds of people who belong to other religion, who have the other cultures, and that make India so interesting and so diverse. यही सब चीज़ें हमारे इंडिया को क्या बनाती हैं? इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं और सो डाइवर्स भी बनाती हैं. इफ़ यू सी द हियर there is given pictures. 3 children around your age have drawn the figure above. Use the empty box, draw your human figure. अगर आप इस empty box में अपने अकॉर्डिंग ह्यूमन फिगर बनाते हैं. इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर्स? क्या आपकी जो ड्राइंग रहेगी ये इनमें से सिमिलर रहेगी जो 3 बने हुए हैं? द चांस आर अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेकिन वो अपने आप से क्या होंगे? क्वाइट डिफरेंट होंगे. दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ हैज़ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak. हम दिखने में ही अलग नहीं होते हैं, हम हर उन चीज़ में अलग होते हैं. You can take example of language, our culture background, the religious ritual we observe and of course the way we draw. हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, हमारे जो कल्चर बैकग्राउंड होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ऑफ कोर्स दैट द वे वी ड्रॉ, जिस तरीके से हम बनाएंगे. And screaming out the evening headlines. Sorry. Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answer. Is there anyone whose list matches you exactly? Probably not. ऐसा तो हो नहीं सकता. But many of you have similar answer. How many like reading the same kind of books? बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही तरीके के बुक्स को रीड करते हैं. How many different languages are spoken by the student in your class? ऐसे कौन कौन से कितने डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज है जो आपके क्लास में बोले जाते हैं. By now you must have recognized. तो आप ये पहचान जाएंगे the many way in which you are quite like some of your classmates and other way in which you are different from them. कि किस चीज़ में आप quite same हैं और किस चीज़ में आप different हैं. Making friends. Do you think it will be easy for you to make friends with someone who is very different from you? Read the following story and think about this. I had mean it is a joke made up for small rag boy who sold newspaper at Janpat crossing at the busy intersection. Now there is story of Samir 1 and Samir 2. Listen carefully. When Samir was going out to his cycle, it is telling about the story about a small rag boy. I had mean it is a joke made up for a small rag boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. ये उस लड़के के लिए स्मॉल जोक था जो न्यूज़पेपर सोल्ड किया करता था जनपद क्रॉसिंग के पास. एवरी टाइम आई साइकिल पास, जैसे ही मेरी साइकिल पास होती ही वुड रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ कर आता. एंड
holding out the English paper and screaming out the evening headline in a mixture of Hindi and English word. हाथ में इंग्लिश पेपर लिए और उसके हेडलाइंस को पढ़ते हुए किस लैंग्वेज में? मिक्सचर लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स में. दिस टाइम आई स्टॉप. उस दिन मैं रुका बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर हिंदी पेपर. हिज माउथ फेल ओपन. यू मीन यू नो हिंदी? इसका मतलब तुम हिंदी जानते हो? यस ऑफ कोर्स आई सेड. आई पेड फॉर द पेपर. मैंने पेपर के लिए पेड किया. वाई? वॉट डिड यू थिंक? तुम क्यों सोच रहे हो ऐसा? ही पॉज्ड. वो रुका. बट यू लुक सो अंग्रेज. ही सेड. तो उसने बोला, जो सोल्ड बॉय है, जो न्यूज़पेपर सोल्ड करता है, उसने बोला, तुम तो अंग्रेज की तरह दिखते हो. यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? और तुम बोलते कि तुम हिंदी रीड कर सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन. आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली. आई कैन स्पीक, read and write Hindi because Hindi is one of the subject I study in school. हिंदी एक सब्जेक्ट ऐसा भी है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ. सब्जेक्ट्स? he asked. who asked? पेपर बॉय जो न्यूज़पेपर शोल्ड करता है. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? अब मैं उसको सब्जेक्ट के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो कभी स्कूल गया ही नहीं. वेल इट इज़ समथिंग. लेकिन ये कुछ तो है. आई बिगन. जैसे ही मैंने स्टार्ट किया. बट लाइट चेंज एंड द हॉकिंग बिहाइंड द ग्रीव 100 फोल्ड्स एंड आई लेट मी माई सेल्फ. जहाँ मैंने अपने आप को ट्रैफिक के बीच में ही रोक लिया था और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई मैं चल दिया. द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन. फिर से हम मिले. स्माइलिंग एट मी. मुझे हंसी देते हुए. होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर. हाथ में हिंदी पेपर लेते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार. आप बैठाइए. ये क्या चीज़ है? अब ये बैठाइए में उसका 2 साउंड निकला. फर्स्ट इज़ इंग्लिश मिक्सचर विथ हिंदी. स्ट्रेंज लगा उसके टंग से. इट साउंडेड लाइक इट्स मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. ओह इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी. आई सेड. मैंने कहा. एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन. तुरंत ही रेड लाइट आ गई. आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? क्या तुम कभी स्कूल गए हो? ही सेड नेवर. आई आंसर्ड नेवर. एंड ही एडेड प्राउडली. और उसने ये भी कहा, आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई. जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैंने काम स्टार्ट कर दिया. ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट. फर्स्ट माई. उसने अब साइकिल सीट को देखते हुए बोला, फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन. पहले मैं अपनी माँ के साथ सीट पर बैठ के आता था लेकिन अब मैं अकेले करता हूँ. व्हेन वेयर इज़ योर मदर नाउ? आई आस्क्ड. तो मैंने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ. जैसे ही लाइट चेंज हो गई मैं वहाँ से चला गया. आई हेard हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ. पीछे जाते जाते मैंने कुछ आवाज़ सुनी कि वो मेरठ में है. द रेस्ट वॉज ड्राउन आउट. माई नेम इज़ समीर. ही सेड द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे हम मिलते हैं तो वो बताता है कि मेरा नाम समीर है. एंड वेरी शाइनली ही आस्क्ड व्हाट्स योर. और बहुत शर्माते हुए वो भी पूछता है कि आपका क्या है. इट वॉज इनक्रेडिबल. माई साइकिल वॉबल्ड. माई नेम इज़ समीर टू. कि मेरा नाम भी समीर है. आई सेड व्हाट. मैंने कहा व्हाट. हिज आइज लिट अप. येस. आई ग्रीन्ड एट हिम. इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर. और मैंने उसको ये बताया कि ये हनुमान फादर का नाम है. यू नो. सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2. इसका मतलब तुम समीर 1 हो जाओ और मैं समीर 2 हो जाऊँ. ये किसने बोला? उस न्यूज़पेपर बॉय ने बोला. ही सेड triumphantly some things like that. I answered and I held out my hand. हाथ मिलाओ. समीर 2. His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. The next day, he did not have his usual smile for it. फिर से ग्रीन लाइट स्टार्ट होती है और हम चले जाते हैं. फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल नहीं होती. देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ. ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन रॉयट्स. वो बताता है कि मेरठ में दंगे हो गए हैं और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं. आई लुक एट द हेडलाइंस. कैमवेल रॉयट्स. इट ब्लेस्ड. बट समीर. आई बिगेन. आई एम मुस्लिम समीर.
तो उसने बताता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सारे लोग मेरठ में हैं। हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, और जब मैं उसके शोल्डर को टच करता हूँ वो देखता तक नहीं है। ही वॉज नॉट एन क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, कुछ दिन तक वो मुझसे मिला ही नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं मिला इंग्लिश और हिंदी में। कैन टेल मी वेयर समीर दो हैज़ गॉन, कि वो कहाँ चला गया। Name 3 differences way in which Sameer Ek and Sameer Do were different. There are a lot of difference. Sameer Ek was rich and Sameer Do was poor. Sameer Ek knows the Hindi and English both language, and Sameer Do knows only Hindi language. And Sameer Ek was Hindu and Sameer Do was Muslim. While Sameer Ek is more familiar with English, Sameer Do speak Hindi. जबकि समीर एक इंग्लिश से भी फैमिलियर है लेकिन वो हिंदी बोलता है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। दे आर मेड द इफर्ट टू डू सो बिकॉज, वो इफर्ट करते हैं इससे ऐसा करने के लिए क्योंकि दिस वॉज वॉट द इम्पॉर्टेंट टू देम, कि जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश समझता है तो आप उसके लिए इंग्लिश बोलोगे, अगर वो हिंदी समझता है तो आप उसके लिए हिंदी बोलोगे। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड, दोनों के डिफरेंट हैं कल्चर और रिलीजियस। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये किसकी एक्सपेक्टेशन होती है? हमारी डाइवर्सिटीज़ की, कि हमारे रीजन्स और हमारे बैकग्राउंड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं।